So let's get started. In the last session, we were able to load the new records only, right? What if we have any change, that is SCD type 1? What's the SCD type 1 column? Let's see. Okay, so we have a document here. So जब हमने टेबल बनाया था, so we have defined some columns here, right? SCD type 1 columns क्या है टारगेट टेबल में? टाइप 1 कॉलम इज़ कस्टमर नेम, मतलब SCD टाइप 1 इम्प्लीमेंटेशन हमने कस्टमर नेम पर कर रहे हैं, राइट? सो इन रियल टाइम देर इज़ अ चांस SCD टाइप 1 might be implemented on multiple columns as well. SCD type 3 also implemented on multiple columns. SCD type 2 as well. ठीक है, सो मल्टीपल कॉलम्स पे भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब उस कॉलम में कुछ चेंजेस है तो इट विल बी गेटिंग अपडेटेड इन द टारगेट, राइट? सो यहाँ पे हमने एक ही कॉलम ले लिया, जैसे कि कस्टमर नेम में सोर्स से कुछ चेंज आता है, सो इन दैट केस विल बी ओवर राइटिंग दैट वैल्यू इन टू द टारगेट. सो हाउ, लेट्स सी. So target table and source table we will check first. So source table, so this is my data. Customer name from source if it is getting changed, ठीक है, and customer name present in the target if it is got changed, so then we can consider that record have a change. ठीक है, चेक करते हैं सोर्स से कुछ चेंजेस आने वाला है. ठीक है, सो दिस इज माय सोर्स टेबल. अपडेट सोर्स अंडरस्कोर कस्टमर, दिस इज माय टेबल. ठीक है, सेट कस्टमर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू ठीक है, सिंगल कोट में लिखता हूँ जॉन इंस्टेड ऑफ डो जॉन डोवल. जॉन डो का नेम चेंज होकर जॉन डोवल आ रहा है सोर्स से, मैं अपडेट करके रख रहा हूँ. वेयर कस्टमर अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू इट्स अ नंबर, सो 101. इसको मैं अपडेट कर देता हूँ. ठीक है, लेट्स सी. सोर्स टेबल में कुछ चेंजेस हैं. वन रो गॉट अपडेटेड. चेक द सोर्स टेबल नाउ. सी, जॉन डोवल, जेन स्मिथ. टारगेट टेबल में 101 मतलब जॉन डोवल का नाम क्या है 101 का, चेक करते हैं. डिम टेबल में इसका क्या है, इट्स जॉन डो ओनली. ठीक है, अपडेट किया था मैंने, तो इसकी वजह से आई बी कमिटिंग दैट बाई क्लिकिंग दिस बटन इन ओरेकल. यू कैन ऑल्सो फायर द कमिट एज वेल, ऐसे भी आप लोग कमिट कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ देर इज़ अ चेंज इन द सोर्स टेबल में कुछ चेंजेस है. सो सिंस वी आर डूइंग SCD टाइप 1 ऑन डिम कस्टमर टेबल, ये नाम चेंज हो गया है. सो दिस हैज़ टू बी डायरेक्टली अपडेटेड. सोर्स में ये चेंजेस है. वी हैव टू फाइंड 101 इनटू द टारगेट. वी हैव टू चेक जॉन डोवल नेम, is it equals to source and target? No, right? So it is got changed. 101 found a match into the target. 101 का match मिला, लेकिन there is a name change. So that's why we have to update the incoming source का name, customer name into the target table. How we can do that? So as of now we have only group for new record. So we have to create one more group. So that is type 1 update. ठीक है, type 1 update. When we are going to update this,
when we have this condition true, source and target में record found a match here, ठीक है. when equals to customer id target, source का and target का customer id match हो रहा है, then update the target table, update the target table. Since we are updating the target table, which should be the identifier for us to update that particular record into the target. We are only picking up the current active records through the lookup table. एक ही जैसे कस्टमर आईडी मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं इन फ्यूचर व्हेन वी आर एंड अप विथ एससीडी टाइप 2 implementation. So always update a record by using an unique identifier, by using a primary key, by using a surrogate key. So I'll be dragging that, ठीक है. So this I am dragging into the target, ठीक है. And what we are going to update? Customer name हमें अपडेट करना है, but this should be coming from source, ठीक है. rowan dot customer name हम कहाँ पे अपडेट करने वाले हैं? if the customer id from source and customer id from target are matched and customer dot name let me check the equation whether we have this equation here or not. SCD type 1 override logic, here it is. Here they have directly given not equals to. If not equals to, then directly update it. Okay, let me copy this, or not equals to row2 dot customer name, ठीक है. Check the equation now, what exactly it is. I'll open the expression editor. row1 dot customer id equals to row2 dot customer id. सोर्स एंड टारगेट का कस्टमर आईडी मैच हो रहा है, एंड सोर्स का नेम टारगेट के नेम से मैच नहीं हो रहा है. in that case what we are going to do? We are going to update the target table against what key? The customer dim key, ठीक है. click on OK, ठीक है. So apart from this, what we need to update in the target, let me walk you through that. We are simply updating, यहाँ पे हमने तो डायरेक्टली क्वेरी लिख के दिया है, बट वी आर अपडेटिंग इट थ्रू द ETL, through the talent, through the component only. We are not directly using the update query here. update dim customer मतलब टारगेट टेबल हमें अपडेट करना है. set customer name is equals to सोर्स का जो कस्टमर नेम आ रहा है, where customer dim key is equals to dim का कस्टमर की, ठीक है. dim का डायमेंशन का कस्टमर की जहाँ पे हमें मिल रहा है उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे? डिम कस्टमर की लिया है टारगेट का. wherever I found that dim customer key, that is 101, or what the customer key, dim key we have, dimension key for 101 is 1. this 1 को हमें अपडेट करना है
कहाँ पे अपडेट करना है, कस्टमर नेम के लिए जॉन डोविल, ठीक है। सो दिस शुड बी अपडेटेड हियर, ठीक है। सो ओनली 2 कॉलम्स आर रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। अप्लाई एंड ओके, ठीक है। सो वी हैव वन मोर ग्रुप नाउ, टी ओरेकल आउटपुट, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे नेम इसका, व्यू डिम अंडरस्कोर कस्टमर SCD 1 अपडेट, ठीक है। यहाँ पे ये न्यू रिकॉर्ड का इंसर्शन हो गया, अभी यहाँ पे ये अपडेट होगा, ठीक है। राइट क्लिक रो टाइप 1 अपडेट कनेक्टेड टू द डिम, ठीक है। So now configure this component, use an existing connection, select connection which has been already created here, यहाँ पे target table name is dim underscore customer, ठीक है। action on table is default, no need to create because we already have this table. Data, action on data is always update because we are updating the target table, right? Sync columns, we have only 2 columns here to be used. So now this is my customer name. Let me expand it and let me tell you what we need to choose here. This is a key column, so I have to choose this as key to update the target table, okay. So I am done with the setup now. Source में changes already available, we don't have any new records here. If I run this flow, I should get the 1 record updated into the target, ठीक है। run this, so we got 2 records updated, but then normally it should not be happened. Somewhere we are missing with the equation here, somewhere we are missing with the equation, so we have to use dot equals method instead of equals, instead of directly equal. Dot equals, dot equals in bracket this customer, ठीक है। let me show you the equation again. पहला इक्वेशन है, पहले तो ये मैच होना चाहिए, सोर्स का कस्टमर आईडी इज इक्वल टू टारगेट का कस्टमर आईडी, राइट। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सोर्स का मतलब इनकमिंग कस्टमर नेम इक्वल्स टारगेट का कस्टमर नेम. So before that simply we should put not. Okay, not equals of this. ठीक है. Let me validate this whether it will work or not. Let's check. Since the target has been already updated, let's check both of the records has been updated. लेकिन टारगेट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा. So instead of do will, I'll just put D now to validate my next execution. I ran this update statement. Source में John D कर दिया है मैंने. Let me run the commit here and let's go to the talent job now. Clear and run. यहाँ पे अपना सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए instead of updating 2 records. Now it has updated only 1 record. Why I have changed this? As I said earlier, this equation
The second condition is on the string column, equal or not equal sign won't work for that. Since it is in string column, equals method should be used. row1 dot customer name dot equals this row2 dot customer. सिंपली यहाँ पे नॉट मैंने प्लेस कर दिया इसके पहले, नॉट इक्वल्स टू दिस नेम एंड दिस नेम, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, सोर्स का एंड टारगेट का नेम इक्वल्स नहीं होना चाहिए, तब हम सोर्स से जो आने वाला नेम है उसको टारगेट में अपडेट करने वाले, राइट. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट सोर्स से दो रिकॉर्ड्स आ गए, टारगेट में भी दो रिकॉर्ड्स थे, एक रिकॉर्ड मैच, दोनों रिकॉर्ड मैच हो गए, लेकिन ये वाला कंडीशन, ये वाला पहले ग्रुप का कंडीशन, सोर्स से आने वाले कस्टमर आईडी नॉट इक्वल्स टू टारगेट में रहने वाले कस्टमर आईडी, ऐसा एक भी रिकॉर्ड इस ग्रुप के लिए नहीं मिला. इस ग्रुप के लिए एक रिकॉर्ड ऐसा मिला जो सोर्स में भी कस्टमर आईडी था, उसका कस्टमर आईडी टारगेट में भी था, एंड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग एंड हियर, एंड ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है. एंड कस्टमर नेम कमिंग फ्रॉम सोर्स इज नॉट इक्वल्स टू कस्टमर नेम प्रेजेंट इन द टारगेट. जिस कस्टमर आईडी को मैच मिला था उसका नेम सोर्स में और टारगेट में चेंज है, राइट. सो दिस इज what here done now. So we have updated that record. Let's check the record has been updated or not. Target table में देखते हैं. See, John D has been updated into the target here. So rest of the columns are as it is. We are not changing anything here. If I run this flow once again, यहाँ पे ज़ीरो रिकॉर्ड प्रोसेस होनी चाहिए और यहाँ पे भी ज़ीरो रिकॉर्ड्स प्रोसेस होनी चाहिए, because that updated record has been updated into the target earlier. We don't have any new record, we don't have any updates into the source, so none of the changes should be happened into the target now. Zero record for new record and zero records for type 1 update. That's the correct result. So this is about SAD type 1 implementation here. So when we talk about SAD type 3 or type 2, what are the columns we have here for SAD type 2? टाइप 2 हम कौन से कॉलम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. टाइप 2 इज़ ऑन द कॉलम ऑफ करंट एड्रेस. इट मीन्स कस्टमर के एड्रेस पे हम लोग टाइप 2 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट. सो दीज आर दी कॉलम्स, टाइप 2 कॉलम्स which are used to track the type 2 column history. ठीक है, ये सारे कॉलम्स क्या हैं, टाइप 2 के कॉलम का हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए यूज हो रहा है, राइट. सो दीज टू कॉलम्स आर टू ट्रैक द पार्शियल हिस्ट्री ऑफ टाइप 3 कॉलम. सो हम लोग पहले टाइप 2 देखते हैं. टाइप 2 इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी द सोर्स टेबल. Source table 101, 102, we have two records here. We are implementing current address, मतलब एड्रेस पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं SAD टाइप 2, ठीक है. इफ़ वी आर इम्प्लीमेंटिंग टाइप 2 ऑन एड्रेस कॉलम, वी हैव टू क्रिएट द न्यू ग्रुप हियर. SAD type 2 SAD type 2. what we are going to do, SAD में क्या करेंगे हम लोग, अगर कोई नया रिकॉर्ड आता है तो इट शुड बी इंसर्टेड. अगर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड आता है तो अगेंस्ट दैट वी हैव टू इंसर्ट द न्यू रिकॉर्ड, as well as we have to update the previous record. SAD type 2 new insert, new underscore insert, SAD type 2 new insert, ठीक है.
So what I'll be doing is I'll be removing now SCD type 1 from here to eliminate the complexity. ठीक है, SCD टाइप 2 इंसर्ट. ठीक है, अभी कोई भी सिनेरियो में SCD टाइप 1 का यहाँ पे नहीं लाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. नाउ टाइप 1 वी आर इम्प्लीमेंटिंग हियर, टाइप 2 वी आर इम्प्लीमेंटिंग हियर. टाइप 2 आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन करंट एड्रेस के ऊपर हम लोग टाइप 2 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा आता है जो टारगेट में अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स व्हाट, वी शुड इंसर्ट दैट रिकॉर्ड. जैसे हमने SCD टाइप 1 का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, सेम वही ग्रुप चलेगा यहाँ पे, वही ग्रुप चलेगा. अगर सारे SCDs हम एक ही इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो देन we need not to remove that group will work for SCD type 2 new insert as well. But specifically I am showing you the example of SCD type 2 only. Okay, अब सोर्स में जो रिकॉर्ड है वही टारगेट में भी अवेलेबल है. ठीक है, सो SCD टाइप 2 न्यू इंसर्ट. न्यू इंसर्ट के लिए क्या चाहिए, सारे कॉलम्स मुझे चाहिए, टारगेट में जितने हैं उतने. ठीक है, ये कॉलम मुझे नहीं लगेगा बिकॉज वी आर नॉट जनरेटिंग द वैल्यू फॉर दैट कॉलम. फॉर दिस कॉलम विल बी गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम सोर्स. फॉर दिस कॉलम विल बी गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम सोर्स. फॉर दिस कॉलम विल बी गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम सोर्स. फॉर दिस कॉलम as well will be getting the value from source. प्रीवियस वैल्यू न्यू रिकॉर्ड के लिए कभी नल ही रहेगा. स्टार्ट डेट विल बी योर करंट डेट, एंड डेट विल बी योर नल. दिस विल बी यस फॉर ऑल द न्यू रिकॉर्ड्स. ठीक है, स्टार्ट डेट मुझे यहाँ पे देना चाहिए. नाउ talent date, get the current date here. current date मैंने ले लिया, डेट कैटेगरी में, talent date कैटेगरी में get current date. let me click on OK here. so डिम कस्टमर की जो टारगेट टेबल में, उसके लिए तो कौन वैल्यू बनाएगा, हमारा सीक्वेंस जनरेटर जो डेटाबेस में अवेलेबल है. उसको ट्रिगर कौन करेगा, एक ट्रिगर हमने बना के रखा है, कस्टमर ID फॉर ऑल द न्यू रिकॉर्ड. जब भी नया कस्टमर का रिकॉर्ड आता है वो सोर्स से आएगा, तो वो कस्टमर ID लेके आएगा, कस्टमर नेम लेके आएगा, करंट एड्रेस लेके आएगा, मेंबरशिप लेवल लेके आएगा. प्रीवियस मेंबरशिप लेवल नए कस्टमर के लिए रहेगा नहीं. एंड स्टार्ट डेट फॉर ऑल दी कस्टमर्स विल बी दी करंट डेट ओनली. स्टार्ट डेट किस कॉलम के बेसिस पे लगाया गया है, यहाँ पे किस कॉलम के लिए लगाया गया है. दिस इज़ फॉर SCD टाइप 2 इम्प्लीमेंटेशन विथ इफेक्टिव डेट. व्हाट इज़ आवर SCD टाइप 2 कॉलम, करंट एड्रेस. जब भी एड्रेस चेंज होता है, तब जब भी किसी कस्टमर का नया रिकॉर्ड आता है, देन उसका एड्रेस स्टार्ट, मतलब SCD टाइप 2 कॉलम का स्टार्ट डेट विल बी द करंट डेट, एंड डेट विल बी नल. मतलब वो स्टिल करंट एड्रेस पे रह रहा है. जब भी कोई कस्टमर का एड्रेस चेंज होता है, तो उसका करंट रिकॉर्ड जो भी है, उसका एंड डेट, जिस दिन वो छोड़ रहा है वो एड्रेस, वो उसका एंड डेट रहेगा. और उसका एक नया रिकॉर्ड बनेगा टारगेट में विथ न्यू सरोगेट की, विथ न्यू डिम की, एंड बाकी सारे वैल्यूज जैसे कि कस्टमर ID वही रहेगा, कस्टमर नेम वही रहेगा, करंट एड्रेस, उसका जो नया रिकॉर्ड है उसमें उसका जो सोर्स से आ रहा है करंट एड्रेस वो रहेगा. मेंबरशिप लेवल ये तो जैसे कि वैसे रहेगा. प्रीवियस मेंबरशिप, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ SCD टाइप 3, तो यहाँ पे हम लोग उसको कुछ नहीं लगाएंगे. दिस इज़ स्टार्ट डेट इज़ आल्सो करंट डेट फॉर द न्यू रिकॉर्ड, एंड डेट विल बी नल, एंड ईज करंट डेट विल बी वाई फॉर द न्यू रिकॉर्ड. जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसी कस्टमर का जिसका स्टार्ट डेट पहले वाला प्रीवियस डेट था, उसका एंड डेट विल बी टुडेज़ डेट, एंड
उसका इज करेंट, दिस रिकॉर्ड द प्रीवियस रिकॉर्ड विल बी दी इनएक्टिव रिकॉर्ड नाउ. ठीक है. सो लेट अस get into that. Let me click on apply and OK. ठीक है. अभी मैं इसी को कनेक्ट करूँगा, इसको कैंसिल. लेट मी राइट क्लिक S3 type 2 new record here. Simply I'll click on sync. So this will be going to insert the record now. ठीक है. Customer ID, customer name, customer current address, membership, previous membership, start date, end date and is current. ठीक है. सो जब भी नया कस्टमर आएगा उसका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा. सो दैट विल बी दी करंट एक्टिव कस्टमर. उसका वो रिकॉर्ड करंट एक्टिव रिकॉर्ड रहेगा. ठीक है. अभी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सोर्स में वो सारे टारगेट में हैं. सो इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस फ्लो अगेन वोंट इम्पैक्ट एनीथिंग. टारगेट में कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं जाने चाहिए. इट शुड थ्रो एन एरर समवेयर बिकॉज इट विल ट्राई टू इंसर्ट. टारगेट में एक्चुअल में नहीं जाने चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड्स टारगेट में गए बिकॉज हमने यहाँ पे फिल्टर कंडीशन नहीं लगाए हैं. तो वी हैव टू पुट दिस सोर्स कस्टमर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, टारगेट का कस्टमर आईडी. ऑलवेज लुकअप शुड ब्रिंग द करंट एक्टिव रिकॉर्ड. हाउ वी कैन ब्रिंग द करंट एक्टिव रिकॉर्ड. लुकअप में जो भी क्वेरी है उससे हमें करंट एक्टिव रिकॉर्ड्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस फ्लैग वैल्यू और दिस कॉलम फिल्टर. अभी जो टारगेट में रिकॉर्ड्स गए हैं दोज आर नॉट करेक्ट, सो वी हैव टू ड्रॉप देम ऑफ. 4 रिकॉर्ड्स राइट, तो वो नहीं जाने चाहिए. डिलीट फ्रॉम डिम अंडरस्कोर कस्टमर. मैं सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर रहा हूँ अभी. सो आई विल बी कमिटिंग दिस. सो सिंस वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड इनटू द टारगेट, सो लेट्स चेक द टारगेट टेबल हियर. टारगेट में कुछ भी डेटा नहीं है, मैं कमिट भी कर रहा हूँ. सोर्स में 2 रिकॉर्ड्स हैं, सो आई शुड bring those 2 records into the target now. So what's the condition for loading the new records into the target? Source customer ID target में नहीं मिल रहा है. It means source से जो आ रहा है record that is new record. Go and insert. How it will insert that record? Because of this action and data is insert, right? And in which table it will do it? In dim customer. Schema is as it is given. Clear and run. So now it should insert 2 records. So we have exact 2 records which are coming from source. Those 2 records didn't find into the target, so that's why we are inserting them. If I execute the same flow once again, it should not load any records into the target. See, अभी लुकअप को 2 रिकॉर्ड मिल गया, तो वो चेक करेगा सोर्स से जो आ रहा है रिकॉर्ड 101 एंड 102 दोज आर एग्जैक्टली सेम एंड दोज आर प्रेजेंट इनटू द टारगेट. दोज आर नॉट न्यू, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंसर्ट देम इनटू द टारगेट. सो नाउ अभी तो सोर्स हमने ग्रुप 1 बना लिया जिसमें S3 टाइप 2 का न्यू इंसर्ट हो रहा है. ठीक है. अब सेकेंड थिंग इज SCD underscore type underscore 2 old insert. अब old insert को हमें समझना है. What is old insert now? Old insert means what? जब अपने पास एक रिकॉर्ड है टारगेट में और सोर्स में भी और SCD टाइप 2 कॉलम पे कुछ ना कुछ चेंज आया है. सो इन दैट केस what we are doing, we are creating a new record for it. And also we are updating its old record. कैसे? Let's take an example. सोर्स का डेटा दिखाता हूँ मैं.
सोर्स में 101 जॉन डी जेन स्मिथ 101 and 02. So we are implementing SAD type 2 on address column, right? In the address column, set current address. Current address is equals to 111 EST ST or simple EST और 111 साउथ एंड वाई. ठीक है, ये वाला एड्रेस मैंने 101 को मतलब जॉन डी को अपडेट कर दिया. सो आई विल बी अपडेटिंग इट. ठीक है, लेट मी कमिट इट. लेट मी शो यू द डेटा एज वेल. इन द सोर्स वी हैव दिस एड्रेस. जब आप टारगेट में देखोगे सेम 101 का एड्रेस इज समवॉट चेंज. ये साउथ नहीं हुआ, SOUT हो गया था. लेट मी अपडेट इट वंस अगेन. ठीक है, डिम कस्टमर में चेक करते हैं वही रिकॉर्ड जिसका करंट एड्रेस इज 123 ELM ST. ठीक है, डिम कस्टमर की यू कैन सी 5-6 से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज समवेयर इट इज़ गेटिंग रिमेंबर्ड दी वॉट मैक्सिमम customer key was available at the last time when we are deleting all the records from it. So it is not impacting anything. Okay, so हमने कुछ records delete किए थे previously, right? 4 records बने थे, तो that's why it is started from 5 and 6. Doesn't matter. Okay, so now you can check the source का data as well. यहाँ पे 111 साउथ NY है. ठीक है, लेकिन 123 जो है टारगेट में है. so we have to validate those conditions जहाँ पे हमें वो change detect करना है. so how we can detect that change is source का customer ID is equals to target का customer ID होना चाहिए. and source का जो current address है वो इक्वल्स नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू डॉट इक्वल्स ऑफ माई करंट एड्रेस विच इज़ प्रेजेंट इन टू द टारगेट ईयर. ठीक है, लेट्स गो टू द एक्सप्रेशन एडिटर. दिस इज माई एक्सप्रेशन हियर. Customer ID coming from source equals to customer ID present into the target, and current address present into the source not equals to current address present into the target. Is it clear everyone? Any doubt here? Is it clear? Okay, this is our expression now. So I am done with the expression. If this is the case, जब सोर्स से आने वाला कस्टमर आईडी टारगेट की कस्टमर आईडी को मैच हो रहा है और उसके एड्रेस में कुछ ना कुछ चेंज है, दैट्स वाई दोज आर नॉट इक्वल्स. इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस ग्रुप वी हैव क्रिएटेड फॉर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड हियर, राइट. तो मुझे इतने सारे कॉलम्स लगेंगे इंसर्ट करने के लिए, राइट. जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी प्रेजेंट था रिकॉर्ड, ठीक है, उसके लिए कस्टमर आईडी कहाँ से जाएगा. कस्टमर आईडी जो टारगेट में था वो भी रखेंगे तो भी चलेगा. कस्टमर नेम जो टारगेट में था वो भी रखेंगे तो भी चलेगा. कस्टमर करंट एड्रेस शुड बी कमिंग फ्रॉम द करंट एड्रेस प्रेजेंट इनटू द सोर्स, राइट. मेंबरशिप लेवल जो भी था वैसे ही जाएगा. प्रीवियस मेंबरशिप अगर नल था तो नल ही जाएगा. एंड स्टार्ट डेट विल बी दी करंट डेट, गेट करंट डेट. ठीक है, गेट करंट डेट. ओके, end date will be null as usual. उसका
जो इज़ करंट था वो उसको हम वाई करके भेजेंगे, ठीक है। एंड डेट हम इसको नल भी भेज सकते हैं, प्रीवियस मेंबर इसको हम नल भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको नल नहीं भेजेंगे, प्रीवियस मेंबरशिप नल नहीं भेजेंगे। इन फ्यू केसेस जब टाइप 3 इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तब उसका प्रीवियस मेंबरशिप कुछ ना कुछ होगा तब, राइट। जब ये फ्लो कम्प्लीटली हो जाएगा एसरी टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, one of the developer was working for SED type 1, one of the developer worked after type 1 implementation और type 2 पहले implement हो गया। in that case हमें क्या करना है, जो भी है इसको वैसे ही रखना है। as of now don't consider about this previous membership, वो हम वैसे ही रखेंगे, लेकिन end date always be null for this record, right, as this is a current record, right. so let me click on apply एंड ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया उसका, उसके अगेंस्ट एक नया रिकॉर्ड बन गया, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक द प्रीवियस रिकॉर्ड एज इनएक्टिव, उसी का एक रिकॉर्ड। अब इसके अंदर सोर्स के अंदर 101 के लिए जो सोर्स से करंट एड्रेस आ रहा है, टारगेट के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनेगा जॉन डी के लिए, जॉन डी के लिए एक नया रिकॉर्ड बनेगा विद कस्टमर डिम की 7 101 जॉन डी, द न्यू एड्रेस, मेंबरशिप लेवल जो है प्रीवियस मेंबरशिप जैसे भी है उसका स्टार्ट डेट मतलब करंट डेट, टुडेज डेट, ओके। उसका एंड डेट विल बी नल एंड ईच करंट फ्लैग विल बी नल। ये हो गया। ये क्या होगा, नया रिकॉर्ड कैसे बनेगा, विद दिस ग्रुप, दैट न्यू रिकॉर्ड विल बी गेटिंग जनरेटेड हियर, okay. With this group the new record will be generated, and at the same time we have to update the previous record, जो जॉन का प्रीवियस रिकॉर्ड है, ठीक है। उसको हमें कहाँ पे अपडेट करना चाहिए, उसका जो इज करंट है उसको एन करना है, उसको इनएक्टिव बनाना है, एंड उसका एंड डेट विल बी दी करंट डेट। सो दो चीज़ें हमें अपडेट करनी है प्रीवियस रिकॉर्ड्स की। हाउ, लेट्स क्रिएट द न्यू ग्रुप, ठीक है। क्रिएट द न्यू ग्रुप, नाम देते हैं उसको SCD अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर ओल्ड अंडरस्कोर अपडेट, ओल्ड अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फ़िल्टर कंडीशंस लगेंगे, कब अपडेट करेंगे, कब अपडेट करेंगे, सोर्स का कस्टमर आईडी इक्वल्स टू टारगेट का कस्टमर आईडी एंड सोर्स का करंट एड्रेस सोर्स का करंट एड्रेस मतलब सेम ही कंडीशन है, ठीक है। मैं उसी को कॉपी करता हूँ, टारगेट का करंट एड्रेस। ऐसे जब होता है तब हम लोग क्या करेंगे, उसको टारगेट में कुछ कॉलम्स हमें अपडेट करना है, बट टू अपडेट द टारगेट कॉलम्स वी नीड की कॉलम। किसको हम अपडेट करेंगे, जो टारगेट से मिला हुआ कॉलम है, दैट इज प्राइमरी की कॉलम। किसको अपडेट करेंगे, इस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, ठीक है, जिसका कस्टमर डिम की 5 है, ठीक है। उसके अगेंस्ट उसका ईज करंट वैल्यू शुड बी वाई एंड एंड डेट शुड बी अपडेटेड एज करंट डेट। सो दो कॉलम्स में लूँगा, उसका एंड डेट एंड उसका ईज करंट फ्लैग,
इसका is current flag I'm going to update. इसका is current flag will be n now, and उसका end date will be going to updated as the current date. Talent date get current date, update, apply and okay. ठीक है. So how this is going to update? How this is going to update a record? By using this dim key, it will update the target record with the same condition. Source का customer ID and target का customer ID match हुआ, and current address source से जो आ रहा है, target से जो आ रहा है, वो दोनों match नहीं हुए. ऐसा रिकॉर्ड जो भी मिला मुझे, उसका डिम कस्टमर की उठा लो और उसके अगेंस्ट उसका जो एंड डेट है उसको करंट डेट से अपडेट कर दो, एंड उसका इज करंट फ्लैग एन कर दो, अप्लाई एंड ओके. तो ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उस रिकॉर्ड को ये लुकअप नहीं पिक करेगा, सिंस विल बी हैविंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर सेम कस्टमर आईडी. अभी तो हमने और एक ग्रुप बना दिया. अभी टोटल कितने ग्रुप बन गए? 3 ग्रुप. क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके. लेट मी क्रिएट, कॉपी एंड पेस्ट हियर. ठीक है. दिस इज व्हाट ग्रुप वी हैव. राइट क्लिक, दिस इज ओल्ड इंसर्ट. यहाँ पे old insert. This is old update. View old update. ठीक है. इसको हम सिंक कॉलम करके लेते हैं. इसको हम कनेक्ट करते हैं ओल्ड अपडेट के ग्रुप से. ओल्ड अपडेट and connect to this, put it here, I'll put it this here. So let me sync the columns. यहाँ पे records update होंगे, तो let me put it as update. ठीक है. and update जहाँ पे हो रहा है, we have to set the key column for it. Customer dim key is the key for us. Click on OK. Let me save this flow. Let me validate all the logic is set. पहले तो कस्टमर आईडी सोर्स से आ रहा है, टारगेट में जो है वो इक्वल्स नहीं है. सो इन दैट केस इट विल बी वेरी न्यू रिकॉर्ड. ठीक है. उसका स्टार्ट डेट करंट डेट से जाएगा. प्रीवियस मेंबरशिप रहेगा नहीं, सिंस वी आर नॉट मेंटेनिंग और नॉट हैंडलिंग ए सीरी टाइप 3 इनटू दिस जॉब. सो दैट्स व्हाई ये मेंबरशिप लेवल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे. ठीक है. सो एंड डेट ऑलवेज फॉर न्यू रिकॉर्ड इट विल बी एन एक्टिव रिकॉर्ड. सो दैट्स व्हाई एंड डेट हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं. एंड डेट कुछ केसेस में, कुछ ETL फ्लोज में, कुछ जॉब्स में यू कैन सी द एंड डेट विल बी, हाउ दिस एंड डेट विल बी मैनेज्ड. इट विल बी 99, 12 एंड 01. ऐसे एक हाईएस्ट डेट रखते हैं या फिर नल रखते हैं. ठीक है. ठीक. सो इज करंट डेट ऑलवेज. वाई? बिकॉज न्यू रिकॉर्ड एक्टिव ही रहेगा. ओल्ड इंसर्ट मतलब एक रिकॉर्ड के लिए मैच मिला है एंड हम उसको इंसर्ट करेंगे, उससे उस जो सोर्स से आ रहा है उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हम पूरा हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं. किस कॉलम के अगेंस्ट? करंट एड्रेस के अगेंस्ट. सो दैट्स वाई फॉर दी रिकॉर्ड विच इज़ ऑलरेडी देयर, उसके लिए एक नया, उस कस्टमर के लिए एक नया एड्रेस सोर्स से मिला है, तो उसका एक नया रिकॉर्ड टारगेट में बनेगा. एंड प्रीवियस रिकॉर्ड को हम इनएक्टिव बनाएंगे बाय यूजिंग द नेक्स्ट ग्रुप. अपडेट करके उसका इज करंट डेट एन करेंगे, उसका एंड डेट करंट डेट से अपडेट करेंगे. क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके. ऑलरेडी वी हैव अपडेटेड द एड्रेस इन द सोर्स में इसका एड्रेस 111 साउथ ऐसा है. ठीक है. सो ऑलरेडी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट.
to the table. So let's execute this flow. So what should happen, we don't have any new record, मतलब we don't have any total new record, ठीक है. सोर्स और टारगेट से मैच सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड हमारे पास नहीं मिलेगा. जो कस्टमर सोर्स में है और टारगेट में नहीं है, ऐसे रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलेंगे. लेकिन ऐसे रिकॉर्ड मिलेंगे सोर्स में भी है, टारगेट में भी है, लेकिन उनका एड्रेस चेंज है. तो उसके लिए हम लोग नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं. उसके लिए एक प्रीवियस रिकॉर्ड उसका अपडेट कर रहे हैं. ठीक. तो इस फ्लो में एक रिकॉर्ड जाएगा, इस फ्लो में एक रिकॉर्ड जाना चाहिए. सो दोनों फ्लो में एक एक रिकॉर्ड जाने चाहिए. इस फ्लो में एक भी रिकॉर्ड नहीं जाना चाहिए. सो लेट मी रन दिस जॉब नाउ. As expected, we have dim customer old insert. One record has been inserted and one record has been updated. Let's check the dim table. यहाँ पे 111 आना चाहिए and नए रिकॉर्ड के साथ, मतलब डिम कस्टमर की 7 आना चाहिए. 7101 जॉन डी, उसका एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड जो भी रिलेवेंट कॉलम्स है सेम एज इट इज़. ठीक है. एंड यू कैन सी दिस डेट हैज़ बिन गॉट अपडेटेड विद द करंट डेट एंड 101 का प्रीवियस रिकॉर्ड इज़ नाउ इनएक्टिव. So what is the active record for John D? Where is he living now? He is in this address. This is the active record. Let's update it one more time. 222 South NY for 101. So let's commit this. Let me clear and run. So one record for old insert, one record for old update. Let's check the data now. Dim customer for John Doe, for John D, one more record should be created here. See, this is the one more record. So John के लिए 2 record inactive है, this one and this one, right? So John का एक ही record active है, that is the current one. Clear everyone? Any question?